80 लाख कैरेट से ज्यादा हीरों को सर्टिफाई करता है ताकि आप अपने हीरे की चमक और सच्चाई पर पूरा विश्वास रख सकें। हमारे साथ जुड़ें और जानें कि हम क्यों हैं डायमंड इंडस्ट्री का सबसे ट्रस्टेड नाम। हम मानते हैं कि ग्रेडिंग एक परफेक्ट ब्लेंड है आर्ट और साइंस का, जो एक दूसरे को खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करता है। हमारे एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट्स और बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी मिलकर आपके हीरे को हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के तहत परखते हैं। हमारी रिसर्च टीम, जिसमें अनुभवी साइंटिस्ट्स शामिल हैं, लगातार नई नई रिसर्च और इनोवेशन के भागीदार हैं। हम कई तरह की ज्वेलरी को ग्रेड और सर्टिफाई करते हैं, जैसे कि कंटेम्परेरी डिजाइन्स, हारम, फ्यूजन ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, कलर स्टोन ज्वेलरी। हर प्रकार की ज्वेलरी के लिए सही सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम आपके हीरे को ओपन, क्लोज, ग्रुप एंड स्पेशल सेटिंग्स में प्रिसिशन और परफेक्शन के साथ ग्रेड करते हैं। IGI में हम सुनिश्चित करते हैं कि सोने की फिनिशिंग और क्वालिटी को बारीकी से परखा जाए। हमें गर्व है कि अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर में विराजमान श्री राम लला की आइकॉनिक ज्वेलरी IGI सर्टिफाइड है। इसके अलावा गिनीज बुक में दर्ज कई प्रसिद्ध ज्वेलरीज भी IGI द्वारा सर्टिफाइड हैं। IGI ने जेम एंड ज्वेलरी फ्रेटर्निटी की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स उठाए हैं। डी शो प्रमुख रिटेलर्स को ट्रस्टेड डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से जोड़ना, ताकि आपकी ज्वेलरी का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हो फ्लॉलेस। ट्रस्टेड ज्वेलर ऑथेंटिसिटी और हाई स्टैंडर्ड्स को हमेशा फोरफ्रंट में रखकर जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री में ग्राहकों का विश्वास कायम रखना। IGI एक्सप्रेशंस ज्वेलरी डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट के माध्यम से क्रिएटिविटी और इनोवेशन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाना। नो योर डायमंड ज्वेलरी 10 लाख से अधिक ग्राहकों को उनके प्रेशियस जेम्स के बारे में जानकारी देना और उन्हें जागरूक बनाना। हमारी एक्सीलेंस के प्रति लगन और कमिटमेंट ने हमें दुनिया भर के टॉप ज्वेलरी ब्रांड्स और कस्टमर्स का ट्रस्ट दिलाया है। IGI के साथ जुड़ें और अपने कीमती जेमस्टोन्स को हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाई करें। IGI, जहां हर जेमस्टोन को मिलती है उसकी असली पहचान। Trust is more precious than diamonds. Trust is the one commodity that you can never lose, and IGI strives to build trust and confidence in the consumers. At IGI, we serve the population with accuracy. Accuracy has to be consistent. Consistency has to be also associated with integrity. And finally, we have the overall expertise to combine all these three items in our certification authentication business. With that, I welcome you all to the last session of today. It is my pleasure to introduce our last speaker, Mr. Dinesh Jain, Director GJC and Convener Lucky Lakshmi. Mr. Dinesh Jain hails from a renowned family of jewelers, over 45 years of experience in jewelry retail. He is a hard-working and well-known figure in the industry, recognized for his practical approach to addressing industry issues. As the founder director and managing director of PM Shah and Co Jewelers Private Limited, Mr. Jain oversees operations at 2 urban and semi-urban outlets, as well as 5 exclusive stores from branded jewelry,
watches, and lifestyle products in Maharashtra. His keen interest in the system management and management information system MIS has been pivotal in the company's success. Mr. Jain has extensive experience in social service, having served as a chairman for various educational, religious, and social organizations. He is a founder member of the Gem and Jewelry Council, GJC, previously known as the Gem and Jewelry Federation, GJF, and is serving his second term as a director since 2020. His innovative contributions to the industry, including leading and being associated with committees and successfully launching initiatives like Lucky Lakshmi, Trustmark, and JID. His virtual seminars on pressing issues in the jewelry industry have been widely appreciated by thousands in the trade fraternity. Mr. Jain has also served as a director of the Gems and Jewelry Skill Council of India, GJSCI, and is a promoter of the National Gem and Jewelry Council of India, NGJCI, both sponsored by the Government of India's ministers. Additionally, he served as a seminar committee member of the Gem and Jewelry Export Promotion Council, GJEPC, for over a decade. In recognition of his contributions, Mr. Dinesh Jain received the GJF Chairman's Award in 2009. The IJSF, now renamed Lucky Lakshmi, and the Lucky Lakshmi Community Meet are his brainchild. In every sense, Mr. Dinesh is a true stalwart of the jewelry industry. Today, Mr. Jain will be sharing on the topic Lucky Lakshmi Festival launch. Let us all together join in extending a warm welcome to Mr. Dinesh Jain. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। IIJS के पहले दिन आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं विशेष रूप से GJPC का और खास करके विपुल भाई, नीरव भाई का भी अभिनंदन करूँगा कि ये मंच उन्होंने हमको लकी लक्ष्मी के लॉन्च के लिए प्रोवाइड किया। लकी लक्ष्मी एक फैमिलियर नेम है। बहुत लोगों को जो ट्रेड से जुड़े हुए हैं उनको इनके बारे में पता है। और मैं अगर ये कहूँ कि GJC जो कुछ भी है उसकी बुनियाद इस लकी लक्ष्मी से पड़ी है। 2006 और 2008 में हमने लकी लक्ष्मी की थी और इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम था जहां 2006 और 2008 में इतनी आसान लॉजिस्टिक गतिविधियां नहीं थी। वहां हमने 200 से ज़्यादा शहरों में तकरीबन 1500 से ज़्यादा ज्वेलर्स को लकी लक्ष्मी से जोड़ा था। और मुझे ये कहने में बहुत प्राउड है कि उस वक्त कैम्ब्रिज ने उसके ऊपर केस स्टडी की थी। पिछले 10-12 साल में इंडस्ट्री ने बहुत सी समस्याएं देखी और इंडस्ट्री की जितनी भी संस्थाएं हैं सब ने साथ में मिलके उनसे जो कुछ भी बेहतर किया जा सकता था वो किया। और मैं समझ सकता हूँ कि अब कुछ हद तक स्थायित्व आया। पिछले वर्ष जब हमारे नए चेयरमैन संयम मेहरा ने और हमारे पास चेयरमैन श्री आशीष भाई ने ये कहा कि दिनेश भाई बहुत ज़रूरी है अब कि हमको B2C को रिवाइव करना चाहिए
और तब हमने इस प्रोग्राम को वापस लॉन्च किया इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से IJSF। IJSF अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ। 900 ज्वेलर्स उसमें जुड़े थे, 167 शहरों से लोग उसमें जुड़े थे, तकरीबन 10.5 करोड़ के इनाम हम लोगों ने दिए थे। पूरा का पूरा कार्यक्रम डिजिटल था, कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं था जहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत हमको मिली हो। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया उसमें से अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया है, बावजूद उसके 25% की रेवेन्यू का कमिटमेंट हमको मिल चुका है। कुछ कमियां हर प्रोग्राम में रहती है और कोशिश हम करते हैं कि उन कमियों को हम पूरा करें। तो मैं आज आपको लकी लक्ष्मी के बारे में, फेस्टिवल के बारे में बताने के पहले ये बात करना चाहूँगा कि लकी लक्ष्मी वास्तव में क्या है। लकी लक्ष्मी एक फेस्टिवल है, अगर ये आपका मानना है तो मेरा विचार आपसे थोड़ा दूजा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लकी लक्ष्मी हमारे लिए एक मिशन है, एक मूवमेंट है। मूवमेंट है क्योंकि मैंने 2006-2008 में पूरे हिंदुस्तान में मुझे घूमने का मौका मिला। तब मैंने जो इंडस्ट्री को देखा और जब गत वर्ष में जब घूमा तब मैंने जो इंडस्ट्री को देखा, बहुत परिवर्तन दिखा। जो लोग टॉप 10 थे 2006 में, वो आज टॉप 100 में भी नहीं है। और जो लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे वो आज नंबर 3 तक आगे है। उस वक्त की सोच थी और आज की सोच में बहुत फर्क है। व्यापार करने के तरीके में फर्क आ गया है। एक कॉरपोरेट कल्चर एक अलग कल्चर हो गया है, एक फैमिली ज्वेलर्स का कल्चर एक अलग हो गया है। और उसमें कहीं न कहीं एक समन्वय की कमी है और कहीं न कहीं हमारा फैमिली ज्वेलर्स ये महसूस करता है कि हमको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। क्योंकि हकीकत ये भी है कि जितनी तेज़ी से पिछले 5 वर्षों में फैमिली ज्वेलर्स ने ग्रोथ की है, उतनी तेज़ी से कॉरपोरेट ने नहीं की है। आप अगर हिंदुस्तान के हर रीजन को देख लें तो जो फैमिली ज्वेलर्स थे आज उनकी 10 दुकानें, 25 दुकानें, 50 दुकानें, 100 दुकानें हो गई। 5 साल पहले जो ज्वेलर्स मौजूद नहीं थे आज उनकी 60 दुकानें हो गई। और ये सब फैमिली ज्वेलर्स थे। और फ़र्क ये था कि हमको लगा कि एक कम्युनिकेशन की तो तकलीफ़ है, ज्वेलर्स कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और किस तरह अपनी बात उसको रखनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमको लगा कि एक सोच की ज़रूरत है। तब हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हमको एक वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। अब वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी का मतलब आप अपने कस्टमर को क्या कहना चाहिए, क्या आपको नहीं कहना चाहिए, आपके व्यापार में आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, कहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, कहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को आप कट कर सकते हैं, कहाँ आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जा सकता है, कौन से एरिया में आपका बिजनेस बढ़ सकता है। और उन सब बातों के लिए जब हमने ये कम्युनिटी मीट का जब प्रस्ताव रखा तो पहली बार इस महीने, पिछले महीने की 17, 18, 19 तारीख को हमने दुबई में एक कम्युनिटी मीट की। तकरीबन 180 लोग वहाँ पर मौजूद थे और ज्वेलर्स ने अपनी बातें अपने ढंग से कही। वहाँ पर कोई एक्सपर्ट्स नहीं था और इतनी नई नई बातें आई, लोगों को इतना नया सीखने को मिला जो लोगों को लगता था कि नहीं था। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो लोग आए उसमें आज भी मुझे कितने लोग मिले, बोलते हैं कि दिनेश भाई, इस कम्युनिटी मीट के बाद जब हमने ज्वेलर्स को हमने सुना किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो हमने देखा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये हमारी एक पहली सोच थी
कि हमको एक वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी बनानी है, और उसके रूप में हमने एक कार्यक्रम किया। उसके यूट्यूब के, उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के सभी हमारे यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, और मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनको देखा है। और आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए, अपने बिजनेस को कितना बेहतर किया जा सकता है, उसमें जो लोगों के सुझाव आए हैं और उनको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक बात है। दूसरा जो मुद्दा हमने लिया है, वो हमने मुद्दा लिया है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो है कि ये बिजनेस जो हमारा है, क्या हम लोग वास्तव में अपने बिजनेस को ध्यान से देख रहे हैं? आज हमारी 60% पॉपुलेशन जो है वो यंग जनरेशन है, और आने वाले 35 सालों तक ये पॉपुलेशन इस बिजनेस को आपकी चलाने वाली, आपके ग्राहक वो लोग हैं जो यंगर है। क्या हम लोग उसके लिए इक्विप्ड है? क्या हमारे पास उनके लिए जो प्रोडक्ट देना है वो है? क्या हमारे बेचने की जो रणनीति है वो उनको सूट करती है? तब कहीं ना कहीं अगर हम सोचते हैं तो वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच यही है कि शादी हुई, शादी का गहने होंगे तो ही अपना बिजनेस चलेगा, बाकी का बिजनेस हम नहीं सोच रहे हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो लोगों को पूछता हूँ कि आपका बिजनेस कैसा है, तब लोग कहते कुछ मंदा है। बोले क्यों? तो बोला अभी विवाह शादी की सीज़न नहीं है। बट क्या सही में ये है? दोस्तों मुझे बताइए, आपके परिवार में ऐसा एक भी मौका आप बताइए जिस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शादी के अलावा जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, किसी बच्चे का बर्थडे हो, कुछ भी आपको कार्यक्रम है, दिवाली हो, आपके पास करवा चौथ हो, एक भी आपका ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहाँ पे ज्वेलरी की ज़रूरत है। लेकिन हमने एक सोच बना ली है कि अगर ज्वेलरी का बिजनेस, अगर विवाह की सीज़न नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं होगा। तो हमने कहा कि हमको उसको फोकस करना है जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, जो आने वाले 35 साल तक हमारे बिजनेस को डोमिनेट करने वाला है, उसके लिए हमको इक्विप्ड होना है। ये हमारा दूसरा टारगेट है इस लकी लक्ष्मी के मूवमेंट में। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो है, हम वास्तव में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे यहाँ पे बिजनेस में 2 ही दिन है जहाँ पे हम लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है। एक मिलता है धनतेरस और एक मिलता है अक्षय तृतीया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए क्या ये पूरा है? मैं समझता हूँ नहीं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो उन्होंने बाइंग के लिए नए नए ओकेजन्स बनाए हैं। वैलेंटाइंस डे बनाए हैं, मदर्स डे बनाए हैं, फादर्स डे बनाए हैं, ब्लैक फ्राइडे बनाए हैं, एंड ऑफ द सीजन सेल्स। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि, और ऐसा नहीं है कि हम खर्च नहीं कर रहे हैं, हमारे ज्वेलर्स करोड़ों रुपए विज्ञापनों पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पर फोकस्ड नहीं है। हमारा तीसरा मकसद है कि हमको नई बाइंग ओकेजन्स बनानी है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक और नई ओकेजन्स पे काम कर रहे हैं, वो है पुष्य नक्षत्र। और हमारा मकसद है कि आने वाले 5 सालों में हमें पुष्य नक्षत्रों को भी उस स्थान पर खड़ा करना है जहाँ पर धनतेरस है, अक्षय तृतीया है। आप लोग सब जानते हैं 15 साल पहले अक्षय तृतीया को इतना नाम नहीं था जो आज है। ये तीसरा मौका हमारा है। और चौथा जो हमारा मेन मकसद है वो अपने आप में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि हमको एक हमारी अपनी इंडस्ट्री का एक प्रोग्राम होना चाहिए। दुनिया में आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, आपका प्रोग्राम होता है। जो मैं अगर आपको ज़्यादा नहीं कहता हूँ, हमारी इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल लो, डी बियर्स का। उसने जो कैंपेन चलाया, हीरा है सदा के लिए। अगर मैं अमूल की बात करता हूँ तो उसने कैंपेन बनाया, दूध पीता है इंडिया। अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं तो उन्होंने कैंपेन बनाया, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और हर सेलिब्रेशन में हम कहते हैं मिठाई की जरूरत पड़ती है, और उसको कैंपेन लेके कैडबरी ने कैंपेन बनाया, कुछ मीठा हो जाए। क्या हमारी इंडस्ट्री का कोई कैंपेन है? क्या इंडस्ट्री का कोई ऐसा प्रमोशन है? तो हमने कहा कि इंडस्ट्री का एक प्रमोशन होना चाहिए, और ये 4 मकसद को लेकर हमने लकी लक्ष्मी का प्लान किया।
और मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये लकी लक्ष्मी जो है, ये आने वाले 5 साल तक उसको आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और 5 साल के बाद ये लकी लक्ष्मी आपको लेकर चलेगी। लास्ट ईयर जब हमने IJSF किया तो पूरे हिंदुस्तान में जब हमने फीडबैक लिया तो सबका फीडबैक एक ही था कि सर इसका नाम वापस लकी लक्ष्मी कीजिए। और दोस्तों, मैं खुशी की बात आपको बताता हूँ कि जिस दिन से हमने लकी लक्ष्मी का नाम चेंज किया, इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री का लक खुल गया। और सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने जो सौगात दी हमको 9% ड्यूटी कम करने की, मैं उसका कहीं न कहीं हक इस लक्ष्मी को देना चाहता हूं कि हमारे लिए ये लकी रही। बहुत से ऐसे अवसर हैं, और ये लकी लक्ष्मी मैंने अब जब रोड शो के मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं जिस शहर में रोड शो की बात करता हूँ, दिनेश भैया आपने लकी लक्ष्मी का नाम बदल दिया, लोग हमने वो लकी लक्ष्मी के दिन देखे हैं, एंड दैट्स वाई वी सेइंग लकी लक्ष्मी इज बैक। अब लकी लक्ष्मी को एक प्रोग्राम जब हमने बनाया है तो निश्चित रूप से हर आदमी की एक अपेक्षा होती है कि ये प्रोग्राम सही होना चाहिए, मेरे यहाँ पे व्यापार होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी 10 रुपया खर्चा करता है वो ये उम्मीद रखता है कि मुझे 100 रुपये का 50 रुपये का व्यापार मिले। तो हम लोगों ने जो फीडबैक लिया और बहुत से परिवर्तन पूछने प्रोग्राम में किए, और सबसे बड़ा परिवर्तन हमने इस बार के प्रोग्राम में किया, जो नई ओकेजन्स हम बना रहे हैं, पुष्य नक्षत्र, विद इन द स्कीम हमने एक स्कीम बनाई है। लकी लक्ष्मी 3 अक्टूबर से लगा के 17 नवंबर तक चलेगी, लेकिन उसके बीच एक स्कीम हमने और डाली है जो 23 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगी, और जो पूरे भारत में चलेगी तमिलनाडु के साथ। और उस वक्त उसका नाम हमने दिया है पुष्य नक्षत्र से दिवाली। और उस वक्त आप अपने हर कस्टमर को जो 1 लाख रुपए का सोना आपसे खरीदेगा, उसको 1 सोने का सिक्का फ्री देंगे, और ये इस लकी लक्ष्मी के प्लान में है। और ऐसे कई प्लान इस लकी लक्ष्मी में है, वीकली ड्रॉ है, बम्पर ड्रॉ है, मैं उन सब बातों को आज बात नहीं करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ा हमने इसमें जो रखा है कि ये प्रोग्राम हम किस तरह से लेके जाने वाले हैं, क्या हमारी इसके पीछे की सोच है, मैं उसकी एक छोटी सी AV आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका लॉन्च करूँगा। प्रेजेंटेशन आज मैं लकी लक्ष्मी का नहीं करूँगा। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कल का समय निर्धारित किया है, जब पूरी डिटेल के साथ ये प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। क्योंकि इस बार छोटा रिटेलर जो 50,000 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन देता है, अपनी दुकान पे 4 कस्टमर का इनाम उसको अवश्य निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, 10 करोड़ के हम इनाम कैसे देंगे, ये मैं सब कल आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं एक छोटी सी आपको ग्लिम्पसेस देना चाहता हूं कि इस बार की लकी लक्ष्मी को हम कैसे प्रमोट करेंगे। और कल मैं पूरा आपको डिटेल मीडिया प्लान दूंगा कि हिंदुस्तान में कितने हज़ार इंसर्शन हम न्यूज़पेपर में, कौन से पेपर में लेने वाले हैं, और किस तरह से हम इस स्कीम को आगे चलाने वाले हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जिस स्टेप बाय स्टेप, ये हमने 3 महीने पहले से काम शुरू किया। लकी लक्ष्मी की टीम ने जो आज आपके सामने पेश कर रही है, उसके पीछे की 3 महीने की मेहनत है। मैं वो AV प्लीज़, कैन यू स्टार्ट एन AV प्लीज़।
इस बार की हमारी जो थीम है लकी लक्ष्मी की, वह थीम अपने आप में गेट ब्लेस्ड बी लकी, और उस थीम के साथ आपने देखा होगा हर शोरूम में हम सेल्फी बूथ बनाने वाले हैं, जो यंग जनरेशन को क्रिएट करता है। जो यंगस्टर्स पोस्ट करेंगे उनके लिए हमारे पास इनाम है, जो ज्वेलर्स जो लकी लक्ष्मी के बूथ बनाएंगे उनके लिए हमारे पास इनाम है, और हर दिन आपकी दुकान से इनाम निकलने हैं। और हर दिन तकरीबन अगर हम पिछले IGSF की बात करें तो उसके मुकाबले इस बार तकरीबन हमने 300 गुना ज़्यादा इनाम रखे हैं। मैं इसी लकी लक्ष्मी को आज यहाँ पर लॉन्च करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं हमारी इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मंच पर उपस्थित हों और उनके हाथों से हम इसका आज लॉन्च करें। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा हमारे GJC के चेयरमैन श्री संयम मेहरा, श्री संयम जी मेहरा, हमारे GJPC के चेयरमैन श्री विपुल शाह, हमारे श्री राजेश रोकड़े जी जो वाइस चेयरमैन हैं, श्री किरीट बंसाली अगर यहाँ पर है तो, श्री एन अनंत पद्मनाभन जी, श्री महेश जैन जी, नीरव बंसाली जी, श्री जिग्नेश भाई, श्री मिस लता फ्रॉम द IGI, हमारे जॉइंट कन्वीनर श्री मनोज झा जी, हमारे दूसरे जॉइंट कन्वीनर श्री मदन कोठारी जी, हमारे को कन्वीनर श्री वसंत बिरावत जी, हमारे IPC श्री आशीष पेठे जी, और हमारे ईस्ट के रीजनल चेयरमैन श्री सुनील पोद्दार जी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधारें और इस लकी लक्ष्मी का आज विधिवत लॉन्च करें। If any directors are here, GJC directors, please come on the stage. मैं अभी हमारे चेयरमैन से और जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस कार्यक्रम के लिए अपने दो शब्द कहें। श्री संयम मेहरा। दिनेश भाई, आई थिंक जिस मोटिवेशन से, जिस एनर्जी से दिनेश भाई को आपको लग रहा है, वर्गीस भाई, वी आर, ही इज द गोल्ड विनर लास्ट ईयर. So Varghese bhai was with me only right now. I would have got you. जिस मोटिवेशन से लकी लक्ष्मी 2008 में हुआ था और उसके बाद लास्ट ईयर होने के बाद वापस इस साल होने जा रहा है. लास्ट ईयर IGSF का नाम था जिसमें मनोज भाई ने, दिनेश भाई ने इतनी मेहनत से काम किया और दिनेश भाई
होंगे अपने 50-60s में, लेकिन 18 ईयर ओल्ड या 21 ईयर ओल्ड की तरह दिनेश भाई ने जो मोटिवेशन से काम किया है, मुझे नहीं लगता हमारे सीओए के अंदर कोई भी ऐसा जन होगा जो इस पावर से, इस मोटिवेशन से पूरे B2C को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एफर्ट कर रहा है। लास्ट ईयर हमारे जो आंकड़े हैं 12,000 करोड़ की सेल IGSF के वजह से हुई थी, जो ज़्यादा हुई थी एवरी ईयर से। और इस साल भी मैं, राजेश भाई ने 1 करोड़ के ऊपर कूपन लिए थे लास्ट ईयर। दिनेश भाई से मेरी बात हुई, मैंने दिनेश भाई को आश्वासन दिया, दिनेश भाई लास्ट ईयर राजेश भाई ने लिया है, और मैंने बोला था आज के दिन ही मैं इसको कंफर्म करूंगा। और राजेश भाई आपको सेकंड थर्ड नहीं, पूरे नागपुर को उसी स्पीड से वापस इसके अंदर मोटिवेटेड होके लेकर आना है। तमिलनाडु विच वाज नेवर अ पार्ट ऑफ एनी स्कीम जिसके अंदर प्राइजेस इन्वॉल्व हो, बिकॉज लीगली इट इज नॉट अलाउड, मिस्टर बाबू सर ने एंड ऑल द ज्वेलर्स फ्रॉम नागपुर एक ऐसी स्कीम बनाई है जिसके अंदर पूरा तमिलनाडु भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। लास्ट ईयर वी हैड 17 to 18 crores एक्सपेंडिचर, दिस ईयर वी आर टारगेटिंग 30 crores एक्सपेंडिचर। जीजेसी जितना बोलता है उससे ज़्यादा डिलीवर करता है। वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई आवर स्पॉन्सरर्स IGI, मदन भाई जिन्होंने इतना अच्छी तरह काम किया, डिवाइन सॉलिटेयर से जिग्नेश भाई इज ऑलवेज बी देयर, वसंत भाई इज ऑलवेज बीन अ पिलर स्टैंडिंग विद दिनेश भाई, ऑलवेज बीन देयर। स्पेशल थैंक्स टू GJPC, टू नीरव भाई। नीरव भाई को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लकी लक्ष्मी कमिटी, एंड उन्होंने कहा कि आई विल बी ऑलवेज देयर, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन फ्रॉम द पार्ट ऑफ फ्रॉम GJPC, दे विल बी देयर। मनोज भाई इज ऑलवेज बीन देयर। मनोज भाई पिछली बार 100% थे, इस टाइम आप सिर्फ 60-65% आ रहे हो। दिनेश भाई इनको और 35% अंदर घुसाओ। तो नहीं, मनोज भाई 100% ही है, फिक्र मत करो। ठीक है। सो मदन भाई इज ऑल्सो बीन, एंड नाजर भाई केरला के अंदर यू हैव टू टेक अ लीड एंड सी टू इट दैट 15 crores कम ओनली फ्रॉम केरला extensively. And Calcutta, Sunil Bhai, our zonal chairman, has always been there with us. So thank you all to all of them. With corporates, Joss Group, Mr. Paul Bhai, Varghese Bhai is here. Sorry, Varghese Bhai gold or diamond ke buyer hai, so how can we forget him? So Varghese Bhai, we require your support also in this entire thing. Again, thank you. And आप सब अपने maximum numbers में आए. 9-10 of us wholesalers are there. Raju Bhai Padmavati is there. My Raju Bhai bracelet. The entire team, 9 of us are there from the wholesale part who was going to be joined with Dinesh Bhai. And Dinesh Bhai, we promise you कि जो भी wholesale point से you need any effort from our side, we will be there. Somesh Bhai, Rajendra Bhai, Vivek Bhai, media is always required, and we require you to stand strong with us. So thank you again. Suresh Bhai from Bangalore. Bangalore के अंदर आप करते हैं, लेकिन ये इंडिया वाइड है, इंडिया वाइड आपका सपोर्ट हमको लगेगा. So thank you to the entire team of Mitesh, Sumit, Venkat, who strongly working with us, and the entire people team Calcutta से I can see Prayas and Pramod ji also there. So request everybody to हम साथ में रहेंगे. It will make a difference. हर साल 1 महीने के लिए इवेंट होगा. Last year 12,000 crores की ग्रोथ आई थी इस इवेंट की वजह से. This year we will have a 15 to 17,000 crores growth also. Dinesh Bhai, I had spoken to Kothari ji also, Vipul Bhai also. They will be there meeting you in the evening at 8 o'clock, where they will pledge their support, and also any bite required, they will be there with us. So would give the mic to. I request to Rajesh Bhai. That's one by one. थैंक यू। एक मिनट या थैंक यू चेयरमैन। मुझे लगता है चेयरमैन ने सभी चीज़ें बता दी है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं PPT देख रहा था, यहाँ पे PPT में था कि 10 करोड़ के इनाम, तो उसका एक 10% का भागीदार मैं भी हूँ। मुझे ही 1 करोड़ के इनाम लग गए थे लास्ट ईयर, तो मैं खुद आपके सामने एज अ सबूत सामने हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, सपने साकार भी होते हैं। और ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल 360 डिग्री काम कर रही है, और केवल सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, ये एक कम्युनिटी को एक साथ जोड़ना और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ाना, ये इसका एक बहुत बड़ा मुख्य बिंदु है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये स्कीम बनाई गई है, इसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी लोग एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं, तो शायद जो इंडस्ट्री आज थोड़ी देर पहले कॉरपोरेट के एक बड़े
भाई साहब से उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये इंडस्ट्री अभी भी 60-65% तक के अनऑर्गेनाइज है। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा बोल रहे हैं एज अ कंप्लेंट, मैं एज अ इसका अच्छाई की तरफ लेके जाता हूँ। पहले तो ये 90% अनऑर्गेनाइज थी, अभी कम से कम 60% पे तो आई गए। इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अलग अलग तरीके के जब भी कोई प्रोग्राम हमारे इंडस्ट्री के होते हैं, आप सभी लोग तन मन धन के साथ आप जुड़ते हैं, लेकिन होल हार्टली बिना पैसों के जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स है काम करते हैं, उनको पर्सनल कोई उसमें बेनिफिट नहीं होता है, बट फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने ही उनको बनाया है, इस वजह से वो लोग काम करते हैं। हमारे पहले जितने भी पास्ट चेयरमैन बने हैं, इंक्लूडिंग बाबू भाई बाजू में बैठे हैं, उनको ही देखता था मैं पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क पहले भी किया है, इनके पहले इनके बाद सभी का एक बहुत मेहनत वाला काम हुआ है। आई थिंक हमारे आईपीसी आशीष पेटे जी भी, आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज ज्वाइन ऑन द स्टेज। तो हमारे सभी पास्ट चेयरमैन ने बहुत मेहनत की है और शायद अब ये वो आम का पेड़ बन गया है कि इसमें फल लगने शुरू हो गए और शायद मीठे फल खाने की अब हमारी बारी है। और जिस तरीके से यह पीरियड इसको चुना गया है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तो नॉर्मल मैं कहता हूँ कि इस दीपावली सोने की बारिश होने वाली है, सोने और चांदी की बारिश होने वाली है। और देखा आपने थोड़ी देर पहले एक एडवर्टाइजमेंट में, इस एडवर्टाइजमेंट में दिखाया था कि कुछ खरीदने के बाद तुरंत उसे एक इनाम मिला, और ये जब इनाम मिलता है तो जो चीज़ इतनी महंगी खरीदने के बाद जो एक गिफ्ट मिलता है, तो उस महिला को कितनी खुशी होती है। और शायद यह खुशी जब हम एज अ रिटेलर अपने ग्राहकों के साथ बांटेंगे तो 100% इसका बहुत बेनिफिट होगा। और सिर्फ एक बार माल बेच के अलग हो जाना अलग बात है, बट उनको माल बेचने के बाद जब तक के इसका फाइनल राउंड होता नहीं, बम्पर प्राइस निकलता नहीं, तब तक के उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है खरीदने के 1 से सवा महीने, तो बार बार वो आपके ज्वेलरी ब्रांड का नाम उनके दिमाग में होता है। और मैं इसके लिए बधाई दूंगा दिनेश भाई को कि पिछले बार की जो लकी लक्ष्मी हुई है, उस लकी लक्ष्मी में सिंगल लीगल कुछ भी प्रॉब्लम्स आए नहीं तो इतना बड़ा जब प्रोग्राम हम करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि होल हार्टली या थैंकलेस जॉब ये लोग कर रहे हैं। हम भी इसका कुछ पार्ट एंड पार्सल है, उसके लिए जितनी बधाई मैं लकी लक्ष्मी टीम की करूँ उतनी कम है। चेयरमैन ने बहुत फ्री हैंडली सपोर्ट किया है। मैं पूरी कमेटी के साथ साथ आज सभी हमारे स्पॉन्सर हैं उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनका ब्लाइंड फेथ ही ये बताता है कि ये इंडस्ट्री सही दिशा में चल रही है। जीजीपीसी के ओर से जो सहकार्य मिला है उसके लिए तहे दिल से नीरव भाई, विपुल भाई और किरीट भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके का आपका सहयोग अपेक्षित है। और मैं शायद पिछले एक मीटिंग में मैंने 4 लाइनें कही थी और वो 4 लाइनें बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश करते हैं और वो कोशिश अगर कामयाब हो जाती है तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की कोई बात मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती है। मैं यही कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक के जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक के जाना हो। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी हमें खुद बनाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। हम साला कोशिश भी न करें, ये तो सरासर गलत बात है। तो आपकी कोशिश के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए तालियां बजाइएगा और इस लकी लक्ष्मी जो हम लोग ने प्लान की है, इस इंडस्ट्री को यूनाइटेड करने के लिए, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उसके लिए आप तन मन धन से जुड़िए। इसमें जब आप जुड़ते हैं तो आप एक्चुअल में अपने आप को हेल्प करते हैं। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री बाबू सर से। Jai Shri Ram. So happy that Lucky Lakshmi is back again after almost 15-18 years. Last year we have introduced, but this time it's come back as Lucky Lakshmi. And with Dinesh Bhai, under the guidance of Chairman, Vice Chairman and immediate past Chairman, I hope this will do better than what we did last year. Congratulations to everybody and above all GJC team. Good luck to all of you. Yeah, I request Ashish Bhai to say a few words. Congratulations to Lucky Lakshmi team and GJC team for a successful launch, and I wish them all the best, and I'm sure you are going to rock again this year also. Once again, thank you. I request Neerav Bhai, our convener of IJSF,
IIJS, to say a few words about it. Congratulations to Lucky Lakshmi team, GJC, for putting up this wonderful initiative. It was very much needed in today's market when we have such a big opportunity in front of us. Programs like this will connect the consumers with us and take this industry to new heights. You have got a very good leader over here in Dinesh Bhai. The passion that he works with, I have seen him. His energy is incredible. So this program is definitely going to be successful. And from GJEPC's side, any support is needed, whatever. We are always here to support this industry. We all have to work together. And we'll make sure that we achieve new heights and break all your previous records. So congratulations once again and all the best to everyone. Thank you. Yeah, I request Varghese to say a few words. Okay, wishing all the best to GJC team on the Lucky Lakshmi, and we have been taking part in last year also, and one of the winner for 1 kg belongs to our showroom in Andhra Pradesh. So again, we wish we have more shopping experiences Lucky Lakshmi for the coming Diwali celebration. So wishing all the best and congratulate the GJC team. Yeah, with this request, I request our joint convener Sri Manoj Bhai and Madan Bhai to give a memento to all our guests. Madan Bhai, please come. Going back and coming back for the evening entertainment. Thank you and all the best. Just a few minutes. Everybody, please. I'm looking forward to seeing you all today at 8 o'clock. Yeah, with friends, as a formally I request Manoj Jha, who is the pillar behind this program with me, I request him to give a vote of thanks. Hi everyone. Lucky Lakshmi is most need of the hour event which every chairman of GJC from last 10-15 years they were planning, but because of some reason it didn't happen. But under the guidance of Rajesh Bhai and Sayam, it is happening with a great effort by Dinesh Bhai. Last year it was IIJSF, and we can see a lot of B2B exhibition, B2B promotions across the country. But B2C is most important thing which should be happen in our country, because that is the pillar. If B2C will go up, if flourish, then only B2B event and the whole industry will flourish. So thank you so much IGI Divine for supporting this event. Special thanks to GJPC and all the across the retailers of the country who are supporting Lucky Lakshmi. I am thankful everyone. And special thanks to 9 sponsors who initially came to support GJC Lucky Lakshmi event. Unique, Raju Bhai Bracelet, Raju Padmavati, a lot of others are there, Master Chain. And I'm really blessed to be the part of IJSF previously. Now it's Lucky Lakshmi. Thank you everyone. Thank you media. Thank you all the people came here to support this event. Thank you so much. My humble request to everyone, please do join tomorrow at 6 p.m. NESCO, where we are actually presenting the Lucky Lakshmi scheme, and it's really a wonderful scheme this year, and the first of its kind, where the direct and indirect both schemes are there. Every customer is going to get the prize, and not only the prize, there are ample scope for winning a prize for them, including a kg of gold to a coin of a Divine Solitaire's coin. Thank you friends for coming. Thank you very much. Thank you, Mr. Dinesh, for leading us with our session and your valuable contribution to the society through this brainchild, Lucky Lakshmi. We wish you a very big congratulations and best wishes and lots of success to the whole Lucky Lakshmi team and the sponsors. Can we have a huge round of applause for the whole Lucky Lakshmi team?
Thank you.